जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਕੁਅਲ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਡ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਚਾਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਲਾਸਟ ਲੈਗ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਸਾਂਝ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ 23ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਲੋਜ਼ਰ 24 ਪੌੜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਤਿਨ ਹਰ ਰਖਣ ਹਾਰਾ। ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਖ ਮਾਰਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਹਰ ਰਖਣ ਹਾਰਾ। ਬਾੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨ ਜਾਪਨੀ, ਹਰ ਤਾਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ, ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ। ਇਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ, ਇਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰ। ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ, ਹਉ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 23 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਲਈ ਸਮਝ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਸ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ, ਹਰ ਸਲਾਹ, ਹਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ
गुरमुख होइए ते सिर्फ गुरमुख ना दे ना होइए, जदों अंदर प्रीत भी होवे गुरु दे नाल, जदों गुरु दे नाल प्रीत पा लई, गुरमुख बन गए, मशवरा भी हर गल दा गुरु दे कोलों लिया, फिर एक भरोसा हुंदा है। वो भरोसा कि मैं अपनी जिंदगी दा हर काम हुण जदों गुरु नूं पुछ के करदा है, ये काम गलत तो हो ही नहीं सकदा, क्योंकि मर्जी गुरु दी है। मैं अपनी मर्जी दे नाल तां ये काम कीता नहीं, क्योंकि गुरु कोलों पुछया। हुण जदों गुरु कोलों पुछ के मैं इस काम लई चलिया है, ते फिर ये काम गलत किवें हो सकदा है? एक भरोसा है। भरोसा है भी हुण मैनूं रखण वाला गुरु आप है। तिन हर रखण हारा राम राजे, जदों प्रीत अंदर लग गई, गुरमुख बन गए, ते हुण रखण वाला जिहड़ा है वो गुरु आप है। जदों गुरु आप रखदा है, ओदी मर्जी दे नाल जदों असीं काम करदे हां, ते फिर तिनकी निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा। फिर जिहड़े निंदक ने ना, जिहड़े हर वेले इस ताक विच रहिंदे ने, निंदा हुण बंदा किसी दी कदों उदों करदा है कमजोरी लभदा है भी इहदे विच मैनूं कोई कमजोरी लभ पवे, ते मैं उस गल नूं, जिन्हों आपां पंजाबी च कहने खंभां दीयां डारां बना देवां, मैं उस गल नूं इस तरह फैला देवां कि आ बंदा ते इंज आ, वो दूजा सुने उहनूं होर जो वधा चढ़ा के करे। निंदक दा काम है। जदों सलाह गुरु कोलों लई, ते बहुता करके जिहड़े निंदक हुंदे आ उहनां नूं लभदा कुछ नहीं, कमजोरी नहीं लभदी। पर एक गल इत्थे होर भी याद रखण वाली, जिहड़ा गुरमुख बंदा गुरु कोलों सलाह लैंदा है ना, फिर वो परवाह भी नहीं करता जे उहदी कोई निंदा कर, क्योंकि वो जन हरि दा बन जाता है। जदों हरि दे जन बन गए, ते फिर वो कहंदा हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे। वो कहंदा इन्हां दा काम ही ये आ, इन्हां ने जो कहना है कही जान। जे मैं कोई गुरु दे कोलों सलाह लैके चलिया है, ते मैं अपना जिहड़ा काम आ मैं क्यों गवावां? मैं अपना जिहड़ा चंगा काम आ मैं उहनूं काहदे वास्ते छड्डां? जिन हर सेती मन मानिया, सब दुष्ट झख मारा। पर जदों हरि दे रस्ते ते चल पे, हरि दे जन बन गए, कुछ दुष्ट सुभाव वाले लोग हुंदे ने, जिन्हां दा काम ही हुंदा है भी हुण ये चंगे पासे चल किवें पिया, ये चलिया ही क्यों चंगे पासे? बर्दाश्त नहीं हुंदा कुछ लोकां दे। ओ फिर की करदे ने, ओ अपना काम करना नहीं छड्डदे। पर जिहड़ा हरि दा जानिया ना, वो कहंदा जिहड़ा तोहमतां लाउण वाला है ये लाई जावे, भाई कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दिओ है ढार। कहंदा लोकन की चतराई उपमा ते वै संतर जार, मैं ते लोकां दी भावें उपमा कीती गई है ते भावें जो मर्जी है, मैं अग च डाह है। ये सारियां चीज़ां मैनूं कोई मतलब नहीं, क्योंकि जन जिहड़ा है वो हरि दा बन। फिर जिहड़े तोहमतां लाउण वाले हैं ना, समझो टक्करां ही मार रहे, सवाए कंधां नूं टक्करां मारन ते होर उन्हां दी कोई हालत वधिया नहीं है। जिस वेले वो किसी गुरमुख दे लई, किसी हरि दे जन वास्ते जदों कोई गलत गल करते हैं, तो समझो वो कंधां दे विच टक्करां मार रहे हैं, होर कुछ नहीं। ऐसे लोगों की परवाह करके जे कोई चंगा काम कर रहे हैं, वो छड्डना नहीं चाहिए। जद नानक नाम ते आया हर रखण हार, क्योंकि गुरमुख ने हमेशा साथ करना है गुणा दा। गुरमुख बंदे ने हमेशा रंगे रहना है नाम दे रंग दे विच। जदों नाम दे रंग दे विच गुरमुख बंदा रंगिया जाता है, फिर वो जिहड़े दुनिया दे तत्ते झोले आ उन्हां दी परवाह नहीं करदा। जिहड़े तोहमतां लाउण वाले ना उन्हां तत्ते झोलियां दी परवाह करदा है, ते ना जिहड़े वकारां दे जिहड़े तत्ते झोले आ फिर वो ही आके फसाउंदे ने, ना वो बंदा उन्हां च फसदा नहीं, क्योंकि गुरु दे कोलों पुछ के तुरना शुरू कर दिंदा है। क्योंकि गुरमुख बन गए, क्योंकि मन टिक गया। जदों मन टिक जावे, फिर जे लोग सलाहे तां तेरी उपमा, जे निंदे तां छोड़ ना जाए। जदों मन टिक जाता है, फिर जिहड़े मन की हालत आ वो इत्थे आके खड़ी हो जाती है। कोई निंदा करता है
चाहे कोई तुहाडी वडियाई करदा है, फिर कोई बहुता असर जिहा नहीं रह जाता। फिर बंदा कहंदा जो आ बस ये ओदा ही आ सब कुछ। जे चंगा काम कीता है ते ओदी वडियाई आ बई, ओदी बख्शिश आ, उन्हां करा लिया। जे माड़ा कीता है ते कोई गल नहीं, अगे वास्ते अपने आप नूं सुधारन दा यतन करांगे। फिर मन की हालत इस तरह की हो जाती है। कोशिश करनी आ गुरमुख बनिए। जिदन गुरमुख बन गए, और गुरमुख बनने वास्ते जेडे गुरमुख बने ने उन्हां दे जीवन तो सेध लैनी बड़ी जरूरी है। उन्हां दे जीवन पढ़िए, उन्हां दी जिंदगियां तो सेध लईए ते गुरमुख बनने की कोशिश करिए। पौड़ी पौड़ी दी अंतली तोक्या, नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार। करना तो भाव सृष्टि। कहंदे जिस अकाल पुरख ने सृष्टि नूं पैदा किया है, उसकी प्रतिपालना भी वो आप ही कर रहा है, संभाल भी वो आप ही कर रहा है। जिन्हें सृष्टि बनाई है ना, जिन्हें सृष्टि रची आ, इसकी संभाल भी वो आप ही कर रहा है। पहली पौड़ी ते गल शुरू की सी, अज इस पौड़ी ते आ गए हैं। फिर सच्चे पातशाह ने ओही जड़ा उपदेश है दृढ़ करा दिता। पहली पौड़ी तो शुरू किया सी, आपीने आप साजियो, आपीने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ, दाता करता आप तू तुस देवे करे पसंद। अज मालिक ने फिर वही गल समझाती है कि नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार। कि जिन्हें इस सृष्टि साजी आ वो हर जगह ते आप समाया हुआ है। कण कण दे विच वो समाया है ते संभाल कर रहा है। इस सृष्टि नूं चलाउण वास्ते अपना हुक्म रूपी जिहड़ा निज़म आ वो बनाया है। उहदे हुक्म दे अनुसार जिहड़े सारे काम ने, जो निज़म उन्हें बनाए ने, उहदे अनुसार सारी कायनात जिहड़ी आ वो अपने अपने काम दे विच लगी है। नहीं कोई उहदे हुक्म दे अनुसार चलदा ते एक इंसान नहीं चलदा। असी कोशिश करनी आ भी इस सृष्टि दे विच रहिंदियां होइयां उहदे हुक्म दे अनुसार चलण दी कोशिश करनी है। नानक अंत ना जापनी हर ताके पारावार। उहदी बनाई हुई जिहड़ी सृष्टि आ, ना तो इहदा ही कोई अंत है ते ना ही उस अकाल पुरख का कोई अंत है, उस बनाउण वाले का कोई अंत है, क्योंकि वह बेअंत है। जे कोई ये समझे भी मैं उहदा उरला ते पारला जिहड़ा पासा है बन्ना वो लभ लवां, उहदा पारावार पा लवां, उहदी शुरुआत ते उहदा अखीर मैं लभ लवां, तां इह हो नहीं सकदा। वो ख्वार तो जरूर होएगा पर उहदा पारावार जिहड़ा है, उहदा अंत जिहड़ा है वो पाया नहीं जा सकता, क्योंकि अंत कारण केते बल्ला है ताकि अंत ना पाया जाए। जे असीं ये गल आखीए भी उहदे अंत नूं असीं लभण तुर पईए, हाँ ये तो हो सकता है भी इस सृष्टि विच रह के रब्बी गुणां नूं धारण करके असीं जिउणा सीख लईए, ये तो बहुत जरूरी है। पर जे असीं ये गल कहीए भी असीं उहदा अंत लभण लई तुर पईए, ये सिर्फ एक झक मारन वाली गल आ, होर कुछ नहीं। आप कराए साखती फिर आप कराए मार। साखती का मतलब सिरजना, इहदे विच जिहड़ी बनावट जां पैदाइश, ये मतलब है। मालिक ने आप ही सारी दुनिया नूं बनाया है ते अपने भाणे अनुसार हर चीज नूं बना के उन्होंने खत्म करने की जिहड़ी ताकत आ वो मालिक आप रखता है। उहदा सिस्टम आ, उहदे सिस्टम के अनुसार जिहड़ा वा वो सारा कुछ चल रहा है, क्योंकि आपां जम्मण मरना हुक्म है, भाणे आवे जाए ये आपां समझ के आए। उहदे हुक्म के अनुसार ही जिहड़ा वा वो असीं जन्म लै रहे हैं, हुक्म के अनुसार ही सारा कुछ खत्म हो रहा है। उन्हें कोई दूजा तीजा चौथा महकमा नहीं बनाया, दूजा तीजा चौथा कोई डिपार्टमेंट नहीं बनाया भी कोई मारन वाला है, कोई पैदा करने वाला है तो कोई पालना करने वाला। उन्हें इस तरह के डिपार्टमेंट नहीं बनाए, वो एक ही है। वो कादर जिहड़ा है वो अपनी इस कुदरत दे विच आप
समाया होया। कुदरत जरूर बेनसनहार आ, खत्म हो सकती है, पर जिहड़ा इहदे विच कादर बैठा है ना, वो कदी खत्म नहीं होंदा। कादर हमेशा रहिंदा। असीं सांझ पाउणी आ, जिहड़ा बलिहारी कुदरत वसिया, जिहड़ा इस कुदरत दे विच कादर वसिया, असीं ओहदे नाल सांझ पाउणी। पर ओहदे नाल सांझ पाउण लग्गिया एक गल ये जरूर याद रखनी आ, तेरा अंत ना जाई रखिया। ओहदा जिहड़ा अंत आ ਉਹਨੂੰ नहीं पा सकते। हाँ, क्योंकि वह बेअंत आ ना, पर ਉਹਦੇ गुणां नूं ਜਿਹੜੇ दसे हुए गुण आ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ धारण करके कुछ ना कुछ गुण धारण करके चंगी तरह नाल अपनी जिंदगी जरूर जी सकते। एक ना गली जंजीरियां, एक तुरी चढ़े बिस्यार, एक ना तो भाव कई जीव, एक नूं जिहड़ी सिहारी, कक्के नूं सिहारी, उत्थे भी कई। कहंदे कई जीवां दे गलां च जंजीरियां ने, सीधे जे अर्थ जिहदे करने होण, जंजीरां पईयां ने, ते कई जिहड़े ने तुरी दा मतलब घोड़ा, घोड़े ते सवार रहिंदे, जानी हर वेले आपां कहंदे ना बंदा तो घोड़े ते सवार रहिंदा, जानी हर वेले तैयार बर तैयार। हुण इहदे अर्थ जिहड़े ने आपां किस तरह समझदे हां? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜੇਤੜੇ ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ। ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ 99% ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਕਿਵੇਂ? ਘਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, घर बनाने वास्ते पैसा भी असीं लाउणा, मालक ने उद्यम दिता है, उद्यम करके जे कोई कमाई कीती आ, जमीन लई आ ते घर बनाउणा है, पर उस घर नूं बनाउण वास्ते, अपने घर दा नींह पत्थर रखाउण वास्ते किदन नींह पत्थर रखना है ते किदन किहदे कोलों रखाउणा है? सो काल्ड बंदियां दे कोल जा के तरले करदे आ ते उन्हां दे कोलों पुछदे आ जी किदन वेले आ, किदन साडे घर दा नींह पत्थर रखोगे? ये असीं अपने गलां 'च जंजीरां ही पाईआं। घर का नींह पत्थर, घर की पहली इट तो अपने माँ बाप को रखवानी चाहिए सी, जिन्हें पालिया ते पाल के इत्थों तक किया। उन्होंने पुछदे नहीं ते दूजे पासे तुरे फिरदे आ, कदी वास्तु शास्त्र वालियां दे कोल ते कदी कई दूजियां तीजियां दे कोल तुरे फिरदे ने। कई डिपार्टमेंट इहो जे बने ने जिन्हां दे कोल तुरे फिरदे ने भी भाई दसो जी किदन वेले हो, आओगे तो साडे घर दा नींह पत्थर रखना, तुसीं रख जाओ। ये जंजीरां ही पाईआं। गड्डियां वाली कंपनी किन्नियां भी गड्डियां सस्तियां कर देवे, शनिवार असीं अपने घर लोहा नहीं लैके आउणा, ये गल दे विच जंजीर ही है। ये औगणां दियां, विकारां दियां, वहमां दियां, भरमां दियां जिहड़ियां जंजीरां असीं अपने गलां दे विच पाई बैठे। इसे जंजीर नूं तोड़िया सी बाबा कबीर जी ने, जिथे उन्हां ने आख्या सी भी गंगा की लहर मेरी टुटी जंजीर। हुण उन्हां ने समझाउण वाले कहंदे जी गंगा दी लहर आई, पानी दे नाल बाबा कबीर जी दी जंजीर टुट गई। हुण पानी दे नाल लोहे दी जंजीर किवें टुटू गई? वो तो टुट नहीं सकती। हुण जिहड़ी गुरबाणी दे अर्थ हमेशा दूजे तीजे चौथे कोलों पुछण दी बजाए गुरबाणी दे विचों लभीए ते ज्यादा वधिया ने। जे हुण असीं जंजीर दी गल कीती है ना, तो इसलिए इत्थे आपां थोड़ी जी गल नूं खोल लई। बाबा कबीर जी कहंदे मन ना डिगे तन काहे को डराए। कहते मेरा जिहड़ा मन है ना हुण डोलदा नहीं, मन डिगदा नहीं। जदों मन नहीं डोलदा ते तन जिहड़ा ये भी डोलणों हट गया, हुण तन भी नहीं डोलदा, क्योंकि जिहड़ी गल आ खेड आ वो सारी मन दी। हुण अखर जिहड़ा मन आ उहदे विच काम वासना आई आ, उहने मन दे विच काम वासना भारी हो गई ते अखां ने बुरा वेखना शुरू कर दिता। मन डोल गया ते नाल ही तन भी डोल गया। जे हुण अपने मन नूं समझा लिया, मन ने भटकना बंद कर दिता। जदों मन ने भटकना बंद कर दिता ते फिर जिहड़ा तन आ फिर तन भी नहीं डोलदा। ते हुंदा क्यों है, किवें हुंदा है? बाबा कबीर जी कहंदे चरण कमल चित रहे समाए। जदों जिहड़ा चित्त आ वो अकाल पुरख दे चरनां दे विच जिहड़ा लग जांदा। चरण भी आपां समझे सी, चरण हैगे हिरदे चरण शब्द सतगुर को नानक बांधिओ पाल। ते चरण कमल ये वर्ड हमेशा इकट्ठा होना। चरण हैगा वा गुरु दा शब्द। जदों गुरु दा शब्द हिरदे दे विच वस गया, गुरु दा शब्द अंदर वसा लिया,
ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਮਲ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਕਮਲ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜ ਗਿਆ मतलब ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਕਮਲ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਆ ਉਹ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੰਗ ਗੁਸਾਇਨ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਹੋਏਗੀ ਗਹਿਰੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਹੈ ਅਜੈ, ਅਜੈ ਗੰਗ ਜਲ ਅਟਲ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਭ ਨਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਦਾ ਸਦੀਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਹਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਅਜੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਆ ਰੱਬ, ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਉਸ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੰਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਕੇ ਵੱਜਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜੰਜੀਰ, ਫੇਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਫੇਰ ਟੁੱਟਦੀਆਂ। ਜੰਜੀਰ ਬੰਦ ਕਰ ਖਰੇ ਕਬੀਰ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੰਜੀਰ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਨਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाव, गले हमारे जेवरी जय किंचे ते जाओ। केड़ी जेवरी? राम दे नाम दी जेवरी, गुरु दे विचारां दी, रब दे विचारां दी जेवरी, प्रेम दी जड़ी जंजीर आ, हुक्म रूपी जंजीर आ। इस जंजीर नूं असीं अपने गल दे विच बन्नना सी ते जेड़ियां दूजियां जंजीरां औगणां दियां, उन्हां जंजीरां नूं तोड़ना सी। असीं की कीता? औगणां दियां जंजीरां जेड़ियां ਉਹ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਕਿੱਦਣ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਹੈ, ਕਿੱਦਣ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਆ ਤੇ ਜੰਜੀਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ, ਜਾਨੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਫੇਰ ਤੇ ਆਣਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਬਰਾਬਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਏ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜੰਜੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਊਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਔਗਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਜੰਜੀਰਾਂ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਣਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਵਸਾਵੇ। ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਛੂ ਗਈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜੰਜੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਵਿਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਆ ਉਹ ਭਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਕੋ ਸੰਗ ਨਾ ਸਾਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਾ, ਈਰਖਾ, ਚੁਗਲੀ, ਆਸਾ ਪਾਸਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਵਸਿਆਰ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜੇ ਘੋੜੇ ਸਵਾਰ, ਜਾਨੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਵਾਲੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹੀ, ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ। ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ, ਹਾਂ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, हे मेरे सच्चे पातशाह जी, सतगुरु साहब जीओ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਮਹੂਰਤ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ।
क्योंकि जदों तुसी सारा कुछ हो, तुसी दस दिता भी इक्को ही करने वाला है, एक ही है बस, दूजा कोई है ही नहीं। जदों तुसी एक दा दस दिता, जदों तुसी ये दस दिता भी दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार, देंदे टोट ना आवे, अगणत भरे भंडार। जदों तुसी सारा कुछ समझा दिता फिर सिस्टम के अधीन चलना है, फिर मैं किसी दूजे तीजे दे कोल अगे जाके पुकार क्यों करा? फिर मैं गंगा की लहर, मेरी टुटी जंजीर, फिर मैनू गंगा की लहर आई, फिर मेरिया जंजीरां जड़ियां ने वो टुट गई ना हुण। बाबा कबीर जी कहते हुण मैं जिहड़ी सिख संगत शब्द दे सरोवरां च इशनान कर रही है, जदों इस शब्द दे सरोवर च इशनान कर लिया, ये अपनियां जंजीरां जड़ियां ने औगणा वालियां तोड़ सुटियां। हुण पता लग गया कि दाता तो एक है, जगत भिखारी फिरत है सबको दाता राम, वो दाता तो एक है, मैं क्यों फिर किसी दूजे तीजे कोल जावां? इस करके मैं होर किसी दे अगे हुण पुकार नहीं करती। हुण मेरी अरदास सिर्फ ते सिर्फ तुहाडे अगे। हुण मेरा गुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज मेरा रब भी है, मेरा गुरु भी है। मैं बाणी दी विचार भी इत्थों सीखनी, इत्थों ही पढ़ना, इत्थों ही सारा कुछ सीखना, इत्थे ही गोदी दे विच बैठना। मैनूं किसी दूजे तीजे दे नाल कोई मतलब। नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार। जिस मालिक ने सृष्टि रची है वो आप ही सारी कायनात की संभाल कर रहा है। असी तो सब बस उसकी रजा दे विच रहना सीख, उसकी रजा दे विच असी तुरना सीख लीए। उहदी रजा दे विच तुर के, उहदी रजा दे विच रहिंदियां होइयां अपने जीवन नूं, अपनी जिंदगी नूं चंगी तरह जीण दी कोशिश करिए। ते अपने मन दी पुकार सिर्फ ते सिर्फ अपने दिल दी अरदास, एक अपने उस सतगुर साहब अगे, किसी होर दे अगे मैं अपने मन दी अरदास करांगी। श्लोक महला दूजा। एक ने ही दात आपस ते जो पाई। धन गुरु अंगद साहब महाराज दे श्लोक ने दोनों। धन धन गुरु अंगद साहब महाराज दे विच आखदे ने, फरमाउंदे ने, कहंदे ने जेड़े बंदे ये गल कह रहे हैं ना, एक ने ही दात आपस ते जो पाई, जेड़े कहंदे ने भी ये काम मैं कीता, ये तां मेरी सियाणप करके होया, जे मैं ना करदा ये काम हो नहीं सी सकदा। महाराज कहंदे आ ये ते मूर्खता वाली गल आ, ये कोई बख्शिश वाली गल थोड़ी हैगी। जेड़ा बंदा आपे ही ये गल कही जावे भी ये काम मेरे करके होया। देखो गुण दिता परमात्मा ने, बख्शिश तो उस परमात्मा दी आ, बख्शिश तो उस अकाल पुरख दी आ। ते बंदा आखे भी मैं ये काम कर रहा वा, मेरे करके हो रहा है, बंदे दी की हिम्मत। हुण मैं ये गल आखां भी मैं इत्थे बोल रही हाँ, जे मैं वेख्या कि इस तरह बोल रही हाँ, मैं इंज कर रही हाँ, मेरी की पाया है मैं इत्थे आके बोल सका, मेरी की हिम्मत आ। और ये गल यकीन जानना, ये उपरले मुंह की गल नहीं, ये मेरे दिल की आवाज आ। मेरी की हिम्मत आ, मैं इत्थे एक वर्ड भी बोल सका। जे उस दाते दी, जे उस अकाल पुरख दी, जे सतगुर साहब जी की रजा ना होवे, जे उन्हां दी बख्शिश ना होवे, ते फिर मैं कौन आ? असी कोई भी कौन है भी असी कोई जाना भी कोई काम कर सकीए? ते जेड़ा ये गल कहंदा है ना भी मैं कर रहा, समझो गुरु की सिक्ख्या नूं मन नहीं रहा। गुरु की सिक्ख्या नूं ना मनना भी गुरु की निंदा करने के बराबर आ। जेड़ा असीं कहंदे ना भी संत की निंदा, जेड़े कहंदे अपने आप नूं सो काल्ड संतां दी निंदा, ना जी ना। परमात्मा दी उत्थे अकाल पुरख की गल है, उत्थे गुरु की गल आ, अकाल पुरख की गल आ। गुरु की गल ना मनना भी गुरु की निंदा करना। सो इस करके नानक सा करमात साहिब तुठे जो मिले। कहंदे बख्शिश ते ओ वा, करमात तो भावे बख्शिश, बख्शिश ते ओ वा जदों अकाल पुरख त्रुट के आप बख्शिश कर दे। हुण फिर आपां कहना जिन्हां ते अकाल पुरख त्रुटदा है उन्हां ते बख्शिश हुंदी है, नहीं। इसनूं आपां कॉन्सैप्ट बड़ा वधिया तरह पहलियां पौड़ियां च समझिया। अकाल पुरख सदा त्रुटदा है, वो सदा त्रुटण लई तैयार बैठा है, वो सदा बख्शिश के घर दे विच रहिंदा है। पर असीं बख्शिश के पात्र किवें बनना है,
ये असी देखना। असी ओदी बख्शिश दे पात्र बनना है जां नहीं बनना है, असी अपना जीवन सचियारा बनाना है जां नहीं बनाना, ये असी देखना। असी अपना मन बेचे सतगुर के पास करना है जां नहीं करना। जे मन बेचे सतगुर के पास ते सेवक के कारज रास, फिर तो सब कुछ सही है। ते जे कही जाइए भी ओदी बख्शिश होगी तो फिर ना इंज। दातां जेड़ियां ने अंदरों गुरमुख बनना है। जदों अंदरों गुरमुख बन गए फिर गुरु दी हर दात जिहड़ी आ वो प्रवान करनी भी आ जाती है। फिर जे उन्हें पुत्र दी दात दित्ती आ, पुत्र बख्शिया है, ये ओदी दात आ। जे धी घर दे विच होई आ, ये भी ओदी दात आ। ते जे भला कदी औलाद नहीं होई, ये भी ओदी रजा है, ये भी ओदी, इहदे विच भी ओदा हुक्म आ। ते जेड़े जेड़े अरदासां कराउण जांदे आ ना, जेड़े पुत्रां दी अरदासां कराउण जांदे आ ते जिन्ना कोल कराउण जांदे आ, उन्हां नूं इह गल चंगी नहीं ना लगदी, उन्हां नूं इह हुक्म पसंद नहीं आउंदा। क्योंकि अरदासां जो करदे होए पुत्रां दियां, वो जे ते हुक्म पसंद करदे होण, जे समझदे होण भी बख्शिश सारी अकाल पुरख दी आ, फिर अरदास कराउण जेड़े आए ने ना, उन्हां नूं समझाउण भी भलिओ दातां सारियां मालिक दियां, उस मालिक दी दात आ सारी सारी ओदी रजाए, ओदे हुक्म नूं, ओदी दात नूं कबूल करना सीखो। पर वो कबूल करना सीखण दी बजाय वो तो आप दूजे पासे ला रहे ने, वो तो आप हुक्मां दी उलंघना कर रहे ने। गुरबाणी दा हुक्म है जात का गर्भ ना कर मूर्ख गवारा, ते असीं की कीता? असीं गोतां जातां दे नां ते गुरुद्वारे उसार लए। असीं अपने नावां नालों असीं ठीक आ, असीं सिंह कौर जिहड़ा चलो ठीक आ, कोई लाउंदे होणगे, कई जाने कहंदे ने भी असीं तां करके लाउंदे, एक वक्री आइडेंटिटी हो जांदी है। पर असीं गुरु ने ते मनुख बनाया सी, मानस की जात साजी सी, असीं गोतां ते जातां दे चक्कर विच पै गए। असीं बाणी दा अमृत पीता ही नहीं। हुण अमृत, मैं सरदार नरिंदर सिंह कपूर दीयां किताबां भी बड़ियां पढ़दी। नरिंदर सिंह कपूर ने एक गल बड़ी वधिया लिखी सी, कहंदे कहंदे बहादुर लोग जिहड़े ने ना, बहादुर ही अमृत पींदे आ। ते नाल थल्ले ही उन्हां ने लिखिया, कहंदे अमृत पींदे ही ओह वा जिहड़े बहादुर हुंदे। इत्थे अमृत है बाणी दे अमृत दी गल। हुण बाणी दा अमृत उही पीऊगा जिहड़ा बहादुर होਊ, जिहड़ा गुरमुख होਊगा। हुण इत्थे बहादुरी किवें? बाणी दा अमृत पीवांगे, बाणी दा अमृत पी के ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ जीना सिखांगे ते फिर दुनिया दे विच लोकां ने बहुत कुछ भी कहना है। फिर उन्हां दी गल्लां जिहड़ियां कहणियां सुननियां सब एक पासे रख के बाणी दे पीते अमृत दे अनुसार जिहड़ा वो चलना पैना। ते होਊगा तां जदों जागांगे, जागांगे ते तां ही ਉਹਦੀ बख्शिश दे पात्र बनांगे। जे सुते रहे ते फिर ਉਹਦੀ बख्शिश दे पात्र भी नहीं बन सकते। पर असीं हल्ली सुते आ, क्योंकि असीं जिन रच रचिया तिसे ना जाने, साडा ये हाल है। जिन्हें रचना रची आ, असीं हल्ली ਉਹਨੂੰ पछाणिया कोई। सो गुरमुख बणीए, जिन्हें ये संसार रचिया है ਉਹਦੇ नाल जान पछाण करके ਉਹਦੇ विच एकमिक होना सीखिए। महला दूजा, एक कनेही चाकरी जित भौ खसम ना जा। कहते ये किहो जी नौकरी हुई, ये किहो जी चाकरी हुई जेड़ी चाकरी करदियां डर ही ना बाहर निकले, जेड़ी नौकरी करदियां बंदे दे अंदर डर ही पिया रहे, दोस्ती ना होवे मालिक दे नाल। ये कनेही चाकरी, ये किहो जी नौकरी हुई। चाहिदा ते अदब ते सत्कार आ, चाहिदा तो निर्मल भाव आ। निर्मल भाव, अदब ते सत्कार वो रखना कोई नहीं, ते एवें बस कंबी जाना, बाकी गलत मलत काम भी करी जाने। ये थोड़ी कोई नौकरी हुई, ये थोड़ी कोई चाकरी हुई। हुण बच्चा, बच्चे ने बाहर पढ़न जाना है, बच्चे नूं माँ बाप ने सिखाया है, जां बच्चा जॉब करन जांदा जां पढ़न जांदा, माता पिता सिखाउंदे भी देख बेटे आ जिहड़ा काम आ गलत आ, असीं भावें तेरे लागे नहीं हैगे, पर तेनू असीं इन्ने साल जिहड़ी सिक्ख्या दित्ती आ, संस्कार दित्ते आ, गुरबाणी जिहड़ी आपां पढ़ी आ, गुरबाणी अनुसार सानू हुक्म नहीं है भी आपां ये काम करना, ये काम गलत आ। हुण बच्चा चला गया माँ बाप तो दूर, उत्थे ओहदा फ्रेंड सर्कल बनिया, ओहदे फ्रेंड सर्कल ने कहा भी लै भाई पीला, चल नशा पीला, जां आ काम कर ला।
बच्चा कहता नहीं, मेरे माँ बाप ने मैनू संस्कार ही नहीं, मैनू जिहड़ी गुरबाणी मेरे माँ बाप ने गुड़ती दित्ती, जिहड़ी पढ़ाई है ना, वो मैनू ये हुक्म नहीं दिंदी भी मैं आ काम। हुण उत्थे बच्चे नू डर थोड़ी आ, जे डर होवे फिर तो कर लवे, लोग शक के झूठ भी बोल देवे। उत्थे बच्चे दे मन च अदब ते सत्कार है अपने माँ प्यो वास्ते, वो निर्मल भाव आ, वो अदब सत्कार है कि नहीं भाई जेड़े मैं जे गलत काम करता मेरे माता पिता नू पता लगा उन्होंने ठेस पहुंचूगी। ते जे कला डर होवे ते डर दियां जंजीरां तां कभी भी टुट जांदियां नहीं। असीं इसे तरह जिहड़ा अदब ते सत्कार आ वो पैदा करना। हुण गुरबाणी दे लई अदब ते सत्कार, अपने साहिब दे लई अदब ते सत्कार पैदा करना सी। इत्थे ते डराया गया भी जे तुसीं बाणी गलत पढ़ लई तो फिर इंज हो, फिर तुहानूं इस तरह हो। कई कुछ उल्ट पलट साखियां भी बनाईयां गईयां, पर गुर जिहड़े गुरु महाराज आ, गुरु महाराज तो वो तो कहते सतगुर सबना दा भला मनाए दा। हुण गुरु महाराज तो साडे माँ बाप आ। हाँ, गुरबाणी बिल्कुल सही पढ़नी चाहिए, मैं इस गल नाल बिल्कुल सहमत हूं, कभी गलत नहीं पढ़नी चाहिए, पर पहले दिन ही तो ABC सही नहीं ना लिखनी आ जाती। जदों असीं गुरु की गोद च बैठांगे, पाठ करांगे, ये पक्की गल है कि गलतियां जरूर होणगियां। कदी पहले दिन तुसीं सही नहीं पढ़ सकदे, सालां दे साल लग जांदे। कई बारी अखर सामने लिखे हुंदे ने, पता भी हुंदा भी इनू ये पढ़ना है, पर जबान ही थथला जाती, कई बारी जबान ही साथ नहीं देंदी। तो फिर की उत्थे गुरु महाराज सजा देणगे ना? वो तो साडे माँ बाप आ, उन्हां दी ते गोदी दे विच असीं बह के गुरबाणी पढ़नी सीखनी आ। ये सिखाया गया, मनां च वहम पाए गए भी गुरबाणी जे गलत पढ़ लई ते पाप लगूगा। नहीं, पाप दा ते मतलब ही माड़ी सोच है ना। गुरबाणी गुरु दी गोदी दे विच बह के, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी, अपने बाप दी गोदी च बहन लग्या भी कभी डर लग्या? साडे माँ बाप गुरबाणी आप पढ़नी सीखिए। गुरु दा निर्मल भाव पैदा होना चाहिए है भी जे मैं गलत काम कर लिया मेरे गुरु नूं ठेस लगू कि ये मेरा सिख है, मेरा बच्चा इस तरह का है। ये निर्मल भाव होना चाहिए है, अदब ते सत्कार होना चाहिए है। पर जेड़ा कहना डर पा के बैठे हैं, काहदा प्यार आ? जे डर ही ना गया, प्यार च डर थोड़ी हुंदा है, प्यार च अदब ते सत्कार हुंदा है, प्यार दे विच निर्मल भाव। ते ओह प्यार असीं अपने साहिब दे नाल पैदा कर। नानक सेवक कांढिए जिस सेती खसम समाए। कांढिए दा मतलब क्या जांदा? कहंदे सेवक ही वो क्या जांदा है, सेवक ही वो आ जेड़ा अपने खसम दे विच समाया हो, जेड़ा अपने खसम दे नाल एकमिक हो जाए, जेड़ा ओदा अदब ते सत्कार दिलों रखे। सेवक ही वो है जेड़ा तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा हो जाए, जेड़ा एक हो जाए। जे डरदे ही रहे तो फिर सेवक ते ना हो। डड्डा डर उपजे डर जाई, तां डर में डर रहा सुना। जे परमेश्वर दे नाल सांझ पा लई तो फिर बाहरले डर जिहड़े आ भज जांदे। ते जे परमेश्वर नाल सांझ ना पाई तो फिर जिहड़े बाहरले डर आ वो सदा ही सताउंदे रहिंदे आ, वो कदी भी आके फिर घेर लैंदे। ते जे सांझ परमेश्वर नाल पा लई, अकाल पुरख दे हुक्मां नाल पा लई, फिर बाहरले डर कदी सताउंदे नहीं। सो बाहरले डरां तो बचना है, अदब सत्कार जिहड़ा है वो पैदा करना है। जदों अदब सत्कार पैदा होएगा, गुरबाणी नाल प्यार पावांगे, निर्मल भाव बनेगा, गुरमुख बनांगे, ते फिर जिहड़े दुनिया दे डर आके घेरदे आ ये घेरनगे नहीं। फिर जिहड़ा बाबा कबीर जी ने समझाया भी गंगा की लहर मेरी टुटी जंजीर, फिर जिहड़ियां गंगा दीयां लहरां नाल जंजीर टुटदी आ ना, वो गुरु दा ज्ञान जदों आके वजदा है, जदों चरण कमल चित रहे समाए, जदों चित दे विच जदों गुरु दा शब्द आके वस जांदा है ना, ते फिर हिरदा कमल वांग खिल जांदा है। इस दुनिया दे विच रहिंदियां होइयां फिर विकार, जिवें कमल नूं नहीं ना चिक्कड़ लगदा, इसे तरह फिर हिरदे नूं विकारां रूपी चिक्कड़ नहीं लगदा। फिर मन भी नहीं डोलदा, जदों मन नहीं डोलदा ते तन भी नहीं डोलदा। ते होया है अदों आ जदों बाबा कबीर जी जंजीर बांध कर खड़े कबीर, जदों बाबा कबीर जी हुक्म दी जंजीर बन के खड़े हो गए।
हुक्म रूपी प्रेम रूपी जंजीर जदों बाबा कबीर जी ने बन लई ते फिर बाबा कबीर जी कहंदे हुण गल बन गई। हुण मेरी ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੀਤ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੌਹਰ ਨਾਮ ਕਾ ਓਲਾ ਤੁਝੇ ਨਾ ਲਾਗੇ ਤਾਤਾ ਚੋ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤਾ ਝੋਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੱਤੇ ਝੋਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤੋਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਇਹ ਝੋਲੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਸਰਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤੱਕ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੀਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਗਈ, ਫਿਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕਹਿ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਫਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਜੁੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਤਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ 24ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ, ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀਏ। ਤਤ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਜੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।